شاذین آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا جب ایمی ہادی کو تیار کروا کر کمرے میں داخل ہوئی۔ شاذین آفس جانے سے پہلے ہادی کا ایڈمیشن کروانے جا رہا تھا، اس وجہ سے ہادی کو اپنے ساتھ لے جا رہا تھا، جبکہ اینی ان کے ساتھ نہیں جا رہی تھی۔ حور یار ایک کام تو کرو، میرا کوٹ تو مجھے پہنا دو، اس نے اینی سے کہا تو اینی نے بیڈ پر پڑا کوٹ اٹھایا اور شاذین کو کوٹ پہنانے میں مدد کی۔ میں ہادی کا ایڈمیشن کروا کر اسے واپس چھوڑ جاؤں گا، فکر مت کرنا، اور اگر مام کچھ کہیں تو ان کی باتوں کو نظر انداز کر دینا، دل پر لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہاں میرے آنے سے پہلے اچھا سا تیار ہو جانا۔ وہ مسکرا کر بولتا اس کا سر چوم کر ہادی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ ہمنا کو جب ہوش آیا تو اس کے ماں باپ نے اس سے کوئی سیو نہ کرنے والی بات چھپا لی، مگر آخر کب تک یہ بات چھپی رہ سکتی تھی؟ وہ آنکھیں موندے لیٹی تھی جب نرس اور اس کو اپنی موم کی آوازیں سنائی دی۔ جب اس نے نرس کو کہتے سنا کہ اب وہ کنسیو نہیں کر سکتی تو فوراً اس نے اپنی آنکھیں کھول کر ان لوگوں کی طرف دیکھا، جبکہ اس کی موم نرس کو خاموش کروا رہی تھی۔ موم کیا یہ سچ کہہ رہی ہے؟ آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ ہمنا میری جان ابھی تم آرام کرو ورنہ تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ موم میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کیا یہ سچ کہہ رہی ہے؟ ہاں یا نہیں میں جواب دیں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ہاں یہ سچ بول رہی ہے، یہ سب ہماری غلطی ہے، ہمیں تمہیں اکیلے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ آخر روتے ہوئے سچ بول ہی پڑی۔ جھوٹ بول رہی ہیں نا آپ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ وہ مسلسل سر نفی میں ہلاتی بول رہی تھی۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ اس نے تو ایسا کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اسے ایک دم خود سے وحشت سی محسوس ہوئی۔ اس نے بھی تو اپنی پہلی اولاد کو ناحق قتل کیا تھا۔ یہ اس کا ہی مکافاتی عمل تھا کہ اب وہ دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ اس نے تو حور اور ہادی کے ساتھ بھی تو برا کیا تھا، پھر اس کے ساتھ کیسے برا نہ ہوتا؟ آنسو اب اس کی آنکھوں سے روانی سے بہنے لگے تھے۔ نرس نے اس کی حالت دیکھ کر جلدی سے اسے بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا تاکہ وہ پرسکون سو سکے۔ ہاشم کو صبح ہی احمر سے ہمنا کے ساتھ ہونے واقعے کا پتہ چلا۔ ہمنا کے ماں باپ کا گھر چونکہ احمر کے گھر سے 2 گھر آگے تھا تو وہاں کے ملازمات سے تقریباً سب کو ہی اس کے ساتھ ہوئے واقعے کا پتہ چلا تھا۔ اسے ہمنا کے بارے میں سن کر دکھ بالکل نہ ہوا، ہاں مگر افسوس ضرور ہوا تھا۔ اسے اپنے دوست سے پتہ چلا تھا کہ آخری دفعہ ہادی اور حور کئی مہینے پہلے ایک پارک میں دیکھے گئے تھے۔ اس کے بعد کہاں گئے کسی کو نہیں پتا تھا۔ اس نے یہاں تک کہ ہر یتیم خانے میں بھی چیک کروا لیا تھا مگر ناکامی ہی اس کی قسمت میں تھی۔ وہ ہر روز بے سکونی کی نیند ہی سوتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ سکون سے تب ہی جی سکے گا جب وہ ہادی اور حور کو ڈھونڈ لے گا۔ اسے رہ رہ کر اپنے ہادی کو تھپڑ مارنا یاد آتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ کاش وہ وقت پیچھے لے جا سکتا تو کبھی ہادی کو تھپڑ نہ مارتا اور نہ ہی ان دونوں کو گھر سے نکالتا۔ وقت اپنی پوری رفتار سے گزر رہا تھا۔ شاذین کو آفس جاتے ہوئے 1 ماہ ہو چکا تھا۔ ہادی بھی باقاعدگی سے اسکول جا رہا تھا۔ اینی بھی شاذین کے کہنے پر اپنے امتحانات کی تیاری کر رہی تھی۔ اس نے جو پرائیویٹ ایڈمیشن لیا ہوا تھا اب اس کے پیپر ہونے والے تھے۔ سحر بیگم وقفے وقفے سے اسے باتیں سنا کر تکلیف پہنچانا نہ بولتی تھی۔ شفق اور ارقم بھی ایک دوسرے کو چاہنے لگے تھے۔ وہ دونوں اپنے احساسات کے بارے میں جانتے تھے مگر ایک دوسرے کو بھی دونوں نے ہی نہیں بتایا تھا، لیکن دونوں ہی ایک دوسرے کے احساسات اور جذبات سے بخوبی واقف تھے۔ رشپا تو پہلے ہی جان گئی تھی کہ ان دونوں میں ضرور کوئی کنیکشن ہے، اور ویسے بھی اسے ارقم کی پسند اور اپنے دوست سے کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر اس وقت کے دوران کچھ لوگوں کی زندگی رک گئی تھی۔ جیسے ہاشم صبح آفس جاتا تو رات کو گھر آتا۔ اسے تو اب اپنے ہی گھر سے وحشت ہوتی تھی۔ اسے گھر میں اکیلے رہنے سے اسے خاموشی کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔
वो 4-5 दफ़ा हवेली भी होकर आ गया था। इसकी अलिशबा से इस दौरान सिर्फ एक बार ही मुलाकात हुई थी, लेकिन इसके बाद इसकी सोचों में अलिशबा भी शामिल हो गई थी। वो जानता था कि हदीद साहिब और अरकम कभी भी इसका रिश्ता अलिशबा से तय नहीं करेंगे। वो जितना इसकी सोचों को झटकता इतना ही वो इसकी सोचों पर काबिज थी, यहाँ तक कि वो मजबूर होता एक दिन अरकम और अलिशबा जिस जगह रह रहे थे इस इलाके में गया, मगर घर में दाखिल होने के बजाय वो बाहर ही गाड़ी में बैठा रहा। फिर थोड़ी देर बाद इसे अरकम अलिशबा को गेट के बाहर छोड़ता दिखाई दिया। इस वक्त अरकम ना पहचान ले, इसलिए वो फ़ौरन सीट में नीचे की तरफ झुक गया था, जिसकी वजह से वो अलिशबा का चेहरा सही से देख ना सका। इसके बाद इसने दोबारा अलिशबा को देखने की कोशिश भी नहीं की। अलिशबा की ज़िंदगी भी बेकैफ गुजर रही थी। बस एक बार इस सितमगर को दोबारा हवेली देख लिया था, इसके बाद इससे मिल नहीं पाई थी, जिस वजह से उसका दिल हाशिम से दोबारा मिलने को बेकरार था। इसे पता था कि वो ये गलत कर रही है, मगर इसके दिल को कौन समझाता जो इसे दोबारा देखने पर बस जिद था। हमना की हालत भी अब काफ़ी बेहतर थी, वो ठीक होकर घर आ चुकी थी, जबकि शाहजेब तो इसके दोबारा मां ना बनने की खबर सुनकर इससे रुख मोड़ गया था। अब इसे एहसास हो रहा था कि इसमें और हाशिम में क्या फ़र्क है। अगर हाशिम की मौजूदगी में ये सब होता तो वो इसे अपने हाथों का छाला बना कर रखता, मगर अब वो क्या कर सकती थी। इसने खुद शाहजेब के बहकावे में आकर ही हाशिम से तलाक ली थी। वो दिन ब दिन डिप्रेशन में जा रही थी, जिसकी वजह से इसके वालिद इसके लिए बेहद परेशान रहने लगे थे, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। और अब तो इसने प्रॉपर दवाई लेना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से इसकी हालत काफ़ी बेहतर हो गई थी। आज इतवार का दिन था और शाहज़ैन, एनी, हादी और शफक हॉल में बैठे लूडो खेल रहे थे और साथ बातें कर रहे थे। शफक आपी, आप चीटिंग कर रही हैं, मैंने अभी खुद देखा है। 2 नंबर आए और आपने 3 नंबर चलाए। हादी ने शफक से चीटिंग करते देखा तो फ़ौरन बोल पड़ा। पहले वाली गेम भी वही जीती थी, इस वजह से वो इस पर ख़ास नज़र रख रहा था। हादी झूठ मत बोलो, मैंने भी 2 ही चलाए थे। वो इसे आंखें दिखाती बोली। हाय अल्लाह आपी, आप मुझे डराने की कोशिश बिल्कुल मत करें, मैं इतना भी डरपोक नहीं कि आपको चुपचाप चीटिंग करते देखूं तो चुप रहूं। वो सियानों की तरह बोला तो एनी और शाहज़ैन इसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठे, जबकि शफक ने इसकी बात पर मुंह बिगाड़ा। वो मज़ीद हादी से लड़ती कि तैमूर साहिब हाल में दाखिल हुए शाहज़ैन से बोले, शाहज़ैन, कल इस्लामाबाद एक क्लाइंट से मीटिंग है, मैं चला जाता, मगर यहाँ भी एक ज़रूरी मीटिंग है जिसमें मेरा होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी जगह तुम चले जाओगे? जी डैड, मैं चला जाऊँगा, आप फिक्र मत करें, मैं वहाँ से सब कुछ संभाल लूँगा। अगर तुम चाहो तो एनी को भी अपने साथ ले जाओ। जब से तुम दोनों की शादी हुई है तुम लोग तो घूमने भी नहीं गए। डैड, मैं इसे अपने साथ ज़रूर ले जाता, मगर इसका परसों पेपर है, इस वजह से इस बार तो ये मेरे साथ नहीं जा पाएगी, मगर हूर के पेपर होते ही हम ज़रूर कहीं घूमने जाएंगे। वो तैमूर साहिब की बात ज़रूर मान लेता, मगर जानता था कि हूर का परसों पेपर है, इस वजह से फ़ौरन इन्हें इनकार कर दिया, जबकि हूर इनके जाने का सुनकर उदास हो गई थी। इसे शाहज़ैन के साथ रहने की इतनी आदत हो गई थी कि अब तो इसका शाहज़ैन को दूसरे शहर भेजने का दिल नहीं कर रहा था। शाहज़ैन की आज सुबह 8 बजे की फ़्लाइट थी और अब वो तैयार हो चुका था। एनी ने इसकी सारी पैकिंग रात को ही कर दी थी, इसी वजह से इसे कोई परेशानी नहीं हुई। अब वो एनी को अपने साथ लगाए खड़ा था, जो इसके जाने पर उदास थी। शाह, पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है, आप प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा और वहाँ पहुँचते ही कॉल कर दीजिएगा। पता नहीं क्यों आज सुबह से ही ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है, इस वजह से वो काफ़ी परेशान थी। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले कॉल करूँगा और अपना ध्यान रखना। मैंने वैसे भी 2 दिनों तक वापस आ ही जाना है। वो इसका सर चूमकर बोला तो एनी ने अपना सर हिलाया। एनी से दरवाजे तक छोड़ने गई थी, जहां ड्राइवर पहले ही शाहज़ैन को एयरपोर्ट ले जाने के लिए खड़ा था। शाहज़ैन आखिरी बार एनी का सर चूमता हुआ गाड़ी में बैठ गया और घर से चला गया। वो मामूल के मुताबिक सबके साथ नाश्ता करके अपने कमरे में बैठी अपने पेपर की तैयारी कर रही थी। तैमूर साहिब अपने ऑफिस जा चुके थे, जबकि शफक अपनी यूनिवर्सिटी चली गई थी और हादी अपने स्कूल चला गया था।
अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी जब इसे हादी के स्कूल से कॉल आई। इनके मुताबिक हादी स्कूल की सीढ़ियों से गिर गया था, जिसकी वजह से इसके सर पर बुरी तरह चोट लग चुकी थी। इसका सर फट चुका था। स्कूल इंतज़ामिया इसे हॉस्पिटल लेकर जा रही थी और इसे भी फ़ौरन पहुंचने का कहा। वो धड़कते दिल के साथ जल्दी से अपने रज़िया को बताकर अपनी चादर लेकर घर से निकली, जबकि वो अपना बैग अपने साथ लेना नहीं भूली थी। वो हॉस्पिटल पहुंचकर हादी के बारे में रिसेप्शन से पूछकर आईसीयू की तरफ गई, जहां इसके स्कूल की टीचर मौजूद थी। इसने एनी को बताया था कि इसकी इतनी शदीद चोट लगी है कि वो बार बार होश में आ रहा है, बेहोश हो रहा है। इसके सर के मखसूस हिस्से में खून जमने का खतरा है, जिस वजह से वो लोग इसका सीटी स्कैन कर रहे हैं। इसने अपना मोबाइल निकालकर शाहजैन को कॉल मिलाई, मगर इसका फ़ोन मुसलसल बंद जा रहा था। इसने तैमूर साहिब को कॉल मिलाई तो वो भी फ़ोन नहीं उठा रहे थे, क्योंकि आज इनके सारे स्टाफ के साथ एक बहुत ज़रूरी मीटिंग थी और इसके बाद इनकी एक क्लाइंट से मीटिंग थी। इसने आखिर मायूस होकर कॉल मिलाना छोड़ दी और हादी के लिए दुआ करने लगी। बेशक अल्लाह कभी भी अपने बंदे को मायूस नहीं करता, बेशक। डॉक्टर थोड़ी देर बाद बाहर आया और एनी को बताया कि हादी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसके लिए पैसे जमा करवा दें। इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दे सकती। शाहजैन और तैमूर साहिब इसका फ़ोन नहीं उठा रहे थे। इसने फिर कुछ सोचते हुए घर फ़ोन किया। रज़िया ने फ़ोन उठाया तो इसने रज़िया को सहर बेगम को फ़ोन देने का बोला। क्या बात है लड़की, क्यों फ़ोन कर रही हो? मैम मुझे पैसों की ज़रूरत है, हादी के ऑपरेशन होना है। कोई मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, तो प्लीज़ आप दे दें। वो पहले एनी को इनकार करने लगी थी कि फिर कुछ सोचते हुए बोली, मैं तुम्हें पैसे अभी भिजवा दूंगी, मगर मेरी एक शर्त है जो तुम्हें माननी पड़ेगी। जी जो भी शर्त है मैं मानने को तैयार हूँ। ठीक है, फिर मैं पैसे लेकर हॉस्पिटल पहुँच रही हूँ, वहाँ ही बात होगी। एनी ने पैसों का इंतज़ाम होते ही थोड़ा सुकून का सांस लिया और दरूद शरीफ पढ़ने लगी। सहर बेगम थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी और इन्होंने पैसे भी जमा करवा दिए थे। अब चूंकि मैंने पैसे जमा करवा दिए हैं तो तुम्हें मेरी शर्त माननी पड़ेगी। जी क्या शर्त है? वो लब काटते हुए बोली। अब तुम घर में वापस कदम रखने की कोशिश भी मत करना। मैं चाहती हूँ तुम ऑपरेशन के फ़ौरन बाद हादी को लेकर यहाँ से चली जाओ। और ये रहे मज़ीद 50,000 रुपये, मैं अब तुम्हें अपने घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना करने की जुर्रत भी ना करना। अगर तुम्हारे भाई का ऑपरेशन करवा सकती हूँ तो इसे रुकवाने में भी देर नहीं लगवाऊंगी। एनी को मजबूरन इनकी बात माननी पड़ी। इसने सहर बेगम से हादी को यहाँ ले जाने का वादा कर दिया। यहाँ तो सहर बेगम वापस घर चली गई। तैमूर साहिब ने शाम को मीटिंग अटेंड करके अपना मोबाइल चेक किया तो एनी की मिस कॉल्स देखकर इसे कॉल बैक की, मगर दूसरी तरफ से एनी का फ़ोन मुसलसल बन जा रहा था। इन्होंने घर वाले नंबर पर कॉल मिलाई तो फिर भी किसी ने कॉल ना उठाई। वो मीटिंग में जाने से पहले अपना मोबाइल साइलेंट पर लगाकर अपने ऑफिस ही छोड़ गए थे, जिस वजह से इन्हें एनी की कॉल्स के बारे में पता ना चला था। वो परेशानी से एनी के बारे में सोचकर घर की तरफ रवाना हुए। अभी वो वापस ही जा रहे थे कि शाहजैन की कॉल इनके मोबाइल पर आई। डैड, अगर आप घर पर हैं तो मेरी बात एनी से करवा दें। मेरे मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, इस वजह से हूर की कॉल अटेंड नहीं कर पाया। मुझे लगता है वो मुझसे नाराज़ हो गई है, इसी वजह से अपना फ़ोन बंद कर दिया है। वो परेशान सा बोलता हुआ तैमूर साहिब को मज़ीद परेशान कर गया। तुम फिक्र मत करो, मैं घर पहुंचते ही तुम्हारी बात करवा दूंगा। वो इसे मुतमईन करते हुए शाहजैन ने इनकी बात सुनकर गहरा सांस लिया और इनसे मज़ीद 2-4 बातें मीटिंग के मुतल्लिक करके कॉल बंद कर दी। वो घर में दाखिल हुए तो मामूल के ख़िलाफ़ पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ, वरना जब भी वो घर में दाखिल होते तो इन्हें हादी लॉन में खेलता हुआ मिलता या फिर एनी के साथ हॉल में मौजूद होता। हूर, बच्चे, हूर और हादी तो इनकी बात सुनकर ना आए, मगर रज़िया ज़रूर किचन से बाहर आ गई। रज़िया, सब लोग कहाँ हैं? सर, वो शहर में तो अपनी दोस्तों की तरफ गई हैं और शफक मैम आज अपने दोस्त के साथ लंच पर गई हैं, इस वजह से वो थोड़ी देर से आएंगी। रज़िया ने जल्दी से जवाब दिया तो तैमूर साहिब के माथे पर बल नमूदार हुए। हादी और हूर कहाँ हैं? घर में दिखाई क्यों नहीं दे रहे?
सर वो तो सुबह ही आप सब लोगों के जाते ही कहीं चली गई थी, फिर अभी तक वापस नहीं आई, और हादी भी स्कूल से वापस नहीं आया। ड्राइवर लेने गया था मगर उन्होंने कहा कि इसकी बहन पहले ही इसे ले गई हैं। क्या बकवास कर रही हो, कहाँ गई है वो? और ये बात पहले फ़ोन करके नहीं बता सकती थी? 5 बज चुके हैं शाम के और तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? सर मुझे कुछ नहीं पता, और मैं थोड़ी देर पहले नेक्सी गई थी, इस वजह से कॉल नहीं उठा पाई। अब जाओ यहाँ से, मुंह क्या मेरा देख रही हो? रुको 1 मिनट, शहर को फ़ौरन फ़ोन करके घर बुलाओ। वो बोलते हुए अपनी जेब से फ़ोन निकाल कर किसी को मिलाने लगे। अजीम, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मेरी बहू सुबह से मिल नहीं रही। इसका भाई हादी भी स्कूल से गायब है, क्या तुम पता लगवा सकते हो वो इस वक्त कहाँ है? क्योंकि इनका फ़ोन भी बन जा रहा है और शाहजैन भी यहाँ पर नहीं। अगर इसे पता चल गया तो वो जाने क्या करेगा। सर आप फिक्र मत करें, मैं इनके नंबर से ट्रेस करने की कोशिश करता हूँ, आप मुझे इनका नंबर सेंड करें। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अभी सेंड करता हूँ। इन्होंने इसे नंबर सेंड करके दोबारा एनी को कॉल मिलाई, मगर मायूसी के सिवा इन्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा था। अब इन्हें यही फिक्र थी कि कहीं इनके साथ कुछ गलत ना हो गया हो। शफक आज लिशबा और अरकम के साथ बाहर लंच करने आई हुई थी, इन लोगों के साथ कुछ गप्पियों में मसरूफ़ थी। मैं वॉशरूम से होकर आई, आप लोग तब तक बात करें। लिशबा अपनी कुर्सी से उठते हुए बोली, शफक एक बात बताओ, तुम उतने खाती हो, मोटी क्यों नहीं होती? अरकम ने अचानक शफक से पूछा तो वो मुंह बगाड़ते हुए बोली, बस अब आपने नज़र लगा दिया तो मैं जो थोड़ी मोटी होने वाली थी दोबारा पतली हो जाऊंगी, आप फिक्र मत करें। अल्लाह अल्लाह, लड़की मैंने कब तुम्हारे खाने को नज़र लगाई? खुदा को मानो मैंने तो वैसे ही कह दिया था। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी नज़र तुम्हें कभी लग सकती है? वो आखिरी बात संजीदगी से बोला, नहीं मुझे यकीन है आप कभी मुझे नज़र नहीं लगा सकते, क्योंकि आपने तो नज़रवट्टू हैं मेरे। हाँ हाँ हाँ। वो पहले संजीदगी से फिर आखिरी बात शरारत से बोलकर अरकम के तासरा देखकर हंस पड़ी। अरकम ने अपनी मुस्कुराहट दबाकर इसे घूरा तो शफक की हंसी को ब्रेक लगी, लेकिन दूर बैठे किसी वजूद ने इन दोनों को हंसते देखकर नफरत से अपना रुख मोड़ फेरा। शफक, मैंने तुम्हारे लिए कुछ खरीदा है, मुझे यकीन है तुम्हें ये पसंद आएगा। वो अपने पॉकेट में एक छोटी सी डब्बी निकाल कर बोला और शफक की तरफ बढ़ा दी। लेकिन मैं ये कैसे रख सकती हूँ? वो धीमी आवाज़ में बोली तो अरकम के माथे पर बल नमूदार हुए। तुम क्यों नहीं रख सकती ये गिफ्ट? पहले इसे खोल कर देख तो लो। अगर तुम्हें ज़्यादा मसला है तो तुम मुझे इसके बदले कुछ गिफ्ट कर देना। चलो अब इसे जल्दी से खोलो। शफक ने इसकी बात सुनकर गिफ्ट बॉक्स खोला तो इसमें ब्रेसलेट थी जिसे छोटे छोटे दिलों से बनाया गया था। वो एक नफीस सी ब्रेसलेट थी जो शफक को बेहद पसंद आई थी। वाह अरकम, ये बहुत खूबसूरत है, थैंक यू सो मच। वो खुशी से चहकते हुए बोली तो अरकम ने मुस्कुराकर इससे पूछा, अगर इजाज़त हो तो मैं पहना दूँ? शफक ने झिझकते हुए अपनी नाजुक कलाई इसके आगे बढ़ाई, जिसे अरकम ने थामते हुए मोहब्बत से इसमें ब्रेसलेट पहनाई। वो वॉशरूम से निकलकर जाने लगी थी जब किसी ने इसका रास्ता रोका। इसने सर उठाकर अपने सामने खड़े शख्स को देखा जो इसके आगे दीवार बना खड़ा था। अपने सामने सितमगर को देखकर अचानक ही इसके दिल की धड़कन अपनी पूरी रफ्तार पकड़ी थी। हाशिम जो इसी रेस्टोरेंट पे अपने क्लाइंट से मिलकर जाने वाला था, इसकी नज़र जब एक टेबल से उठती लिशबा पर पड़ी तो वो लिशबा से बात करने के लिए इसके पीछे आया। इसे वॉशरूम जाता देखकर वो बाहर खड़ा होकर इसका इंतज़ार करने लगा। लिशबा, मुझे तुमसे बात करनी है, पीछे हटिए, भाई मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मुझे जाने दें। वो कांपते लहजे के साथ धड़कते दिल से बोली, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, और अगर तुम सुनोगी भी जीप ज़बरदस्ती है, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, रास्ता छोड़िए। वो अपना लहजा मजबूत बनाते बोली, प्लीज़ लिशबा एक बार मेरी बात सुन लो, मुझे पता है मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया, मगर मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर कर दूँगा। क्या आप मेरा मुकाम और इज़्ज़त मुझे लौटा सकते हैं जो आपकी वजह से मैंने खो दिया? आप क्या मुझे इस ज़िल्लत से बचा सकते हैं जो आपकी वजह से मुझे सहनी पड़ी? या फिर आप मुझे वो वक़्त लौटा सकते हैं जो मैंने दुनिया से खुद को छुपाने के लिए कमरे में बंद होकर गुजार दिया?
वो तंजिया मुस्कुराहट से सुर्ख चेहरे के साथ ज़बत से बोली तो हाशिम ने इसकी बात सुनकर अपने लब भींचे। मुझे एक मौका तो दो, मैं तुम्हारे हर दुख का मुदावा कर दूंगा। मैं तो शायद आपको अपने दिल के हाथों मजबूर होकर मौका दे ही दूं, मगर भाई और बाबा कभी भी आप जैसे कानों के कच्चे वाले शख्स के हाथ में मेरा हाथ कभी नहीं देंगे। इसने गहरी सांस लेते खुद को पुरसकून करते हाशिम से कहा, पहले तुम तो मुझे मौका दो, मैं इन्हें खुद ही मना लूँगा। वो इसकी बात सुनकर अपने बालों में हाथ फेरता मुस्तरब सा बोला, मैंने आपको आखिरी मौका दे रही हूँ, अब आपने जो बात करनी हुई वो बाबा और भाई से ही करिएगा। दोबारा मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत करिएगा, मुझे आपकी ये हरकत सख्त नागवार गुजरी है। वो बोलकर हाशिम के साइड से गुजरकर चली गई। इतने अरसे बाद इसे थोड़ा सुकून मिला था। उधर वो मुसलसल तैमूर साहिब को फ़ोन कर रहा था, जो फ़ोन उठाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो इसे एनी के बारे में सोचकर परेशानी होने लगी। इसका दिल कर रहा था कि वो अभी वापस एनी के पास चला जाए, मगर इसकी फ़्लाइट का टाइम रात 2 बजे का था। वो मुस्तरब सा बेचैन दिल के साथ बेड पर देर हो गया और घर जाकर इसे मनाने का सोचा। वो थोड़ी देर सोने के बाद उठा और फ्रेश होकर अपनी पैकिंग करके एयरपोर्ट के लिए निकल गया। वो खुशी से प्लेन में बैठा एनी को सरप्राइज़ करने का सोच रहा था। फ़्लाइट के लैंड होते ही वो एयरपोर्ट से बाहर निकला, जहां पहले ही इसने कॉल करके ड्राइवर को बुला लिया था। वो गाड़ी में दाखिल हुआ और घर की जानिब चल दिया। वो खुशी खुशी घर में दाखिल हुआ और खामोशी से सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। इसने दरवाज़ा खोला तो कमरे में घुप अंधेरा था। इसने लाइट ऑन करके बेड की जानिब मुस्कुराते हुए देखा, मगर ज़्यादा देर इसकी मुस्कुराहट कायम न रह सकी। खाली बेड को देखकर इसका सारा मूड ख़राब हो गया। इसे लगा कि वो हादी के कमरे में होगी। इस वजह से वो अपने कमरे से निकलकर हादी के कमरे में गया और इसे कमरे की लाइट जलाई तो खाली कमरे को देखकर न जाने क्यों इसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। इसने जल्दी से इर्द गिर्द के कमरे में चेक किया कि शायद इसे तंग करने के लिए हूर हादी को लेकर किसी दूसरे कमरे में ना चली गई हो, मगर इन्हें कहीं मौजूद ना देखकर वो जल्दी से 2-2 सीढ़ियाँ फलांगता हुआ तैमूर साहिब के कमरे के बाहर पहुंचकर इसका दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाने लगा। तैमूर साहिब और जो अभी थोड़ी देर पहले ही हूर और हादी को ढूंढने की नाकाम कोशिश करते हुए सोए ही थे कि कल सुबह वो इसे दोबारा ढूंढने की कोशिश करेंगे, मगर अपने कमरे का दरवाज़ा बजता देखकर वो जल्दी से अपनी जगह से उठे। इन्हें जिस बात का डर था वही हुआ। शाहजैन जल्दी वापस आ गया था। इन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने ही मुस्तरब सा शाहजैन खड़ा दिखाई दिया। सहर बेगम भी शाहजैन के दरवाज़ा बजाने से उठ गई थी और अब इसे ही देख रही थी जो तैमूर साहिब से बात कर रहा था। डैड, हूर और हादी कहाँ हैं? वो अपने कमरे में मौजूद नहीं हैं। शाहजैन, मेरी बात तहम्मुल से सुनो बैठकर। क्या बात करनी है डैड? मुझे कुछ नहीं सुनना, फ़िलहाल सिर्फ आप ये बताएं कि हूर कहाँ है। वो ज़बत से बोला, जबकि इसे तैमूर साहिब की बात से किसी अनहोनी का एहसास हुआ। तैमूर साहिब इसका बाजू पकड़कर इसे हॉल में लेकर आए और सोफे पर बैठाकर इसके सामने बैठते हुए इसे सारी बात बता दी। वो आपकी ज़िम्मेदारी थी, मैं इन्हें आपके हवाले करके गया था डैड, मगर आप तो इनकी हिफाजत भी ना कर सके। वो गुस्से से उठकर बोला और करीब पड़े शो पीस को उठाकर दीवार में ज़ोर से मारा। मुझे वो हर हाल में सुबह तक चाहिए डैड। वो जहाँ भी छुपी हुई हो मैं इसे ढूंढ लूँगा और आप मेरी मदद करेंगे। शाहजैन, अपने गुस्से को काबू करो, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, वो मिल जाएगी। शोर की आवाज़ सुनकर शफक भी अपने कमरे से बाहर आ चुकी थी। वो जब वापस आई थी तब इसे हूर और हादी का पता चला था। शाहजैन इनकी बात सुनकर पास पड़े शीशे का टेबल को ज़ोर से टांग मारता हुआ बाहर की जानिब चला गया और बाहर मौजूद ड्राइवर से गाड़ी की चाबी लेकर घर से निकल गया। एनी को गायब हुए 2 दिन हो गए थे, इसका कुछ पता नहीं चल रहा था। शाहजैन ने हर
इस जगह एनी को ढूंढ लिया था जहां इसके होने का इम्कान था, मगर नाकामी के अलावा इसे कुछ हासिल ना हुआ। वो थका हारा बिखरे हुलिये में रात के 12 बजे घर वापस आया तो तैमूर साहिब इसी का इंतज़ार कर रहे थे। वो बिखरी हालत में इनके करीब ही बैठ गया। डैड प्लीज़ इसे ढूंढ कर ला दें, मुझे इसके बगैर मेरा सांस बंद हो रहा है, प्लीज़ डैड। वो खुद तो चली गई है, साथ मेरा सुकून, चैन और खुशियाँ सब कुछ ले गई। मैं क्या करूँ, इसे कहाँ ढूंढूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बहुत मासूम है डैड, मैंने इसके साथ बहुत बुरा किया। वो पता नहीं किस हाल में होगी, मुझे अपना मोबाइल चार्ज रखना चाहिए था, पता नहीं इसने आखिरी बार मुझसे क्या बात करनी थी। ये सारी मेरी गलती है, मुझे इसे छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। शाहज़ैन संभालो खुद को, हम इन्हें जल्द ही ढूंढ लेंगे। इसकी दर्द बड़ी आवाज़ सुनकर इन्होंने ज़ब्त से शाहज़ैन को टोका। मैंने तो अभी इसे ये भी नहीं बताया था डैड कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, इसे कैसे वो मुझे छोड़कर जा सकती है। मैं इसे ढूंढूंगा और तब तक ढूंढता रहूँगा जब तक वो मुझे मिल नहीं जाती, और फिर मैं इसे कैद कर लूँगा, कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। वो अपने बालों को हाथों में जकड़ता हुआ नम आंखों के साथ शपथ की इंतहा पर था। वो बोलकर अपनी जगह से उठा और अपने कमरे में चला गया, जबकि पीछे से तैमूर साहिब अपने बेटे की ये हालत देखकर परेशान हो गए। हमना के दिन ब दिन डिप्रेशन में जाते देखकर इसके वालिदा ने इसके लिए शहर का सबसे मशहूर माहिर नफ्सियात हमज़ा इब्राहिम से इसे रेगुलर सेशन दिलवाने का सोचा। वो आज डॉक्टर हमज़ा के पास मौजूद थी। वो यहाँ आना नहीं चाहती थी, मगर अपने मॉम डैड की दरख्वास्त सुनकर आ गई थी। वो वेटिंग एरिया में बैठी अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी जब इसे एक 5 साल की करीब बच्ची अपनी तरफ आते दिखाई दी। वो कहीं से भागती हुई आ रही थी। वो बच्ची आकर इसके करीब बैठ गई। हमना ने हसरत भरी निगाहों से इसे देखा। काश वो अपने बच्चे को ना मारती तो आज खुद एक बच्चे की माँ होती। आंटी मेरी मदद करें छुपने में, वो हमना से बोली तो हमना ने इसको देखा। बेटा आपकी मामा कहाँ हैं और आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरी मामा तो अल्लाह जी के पास हैं आंटी, वो उदासी से बोली। तो फिर आप यहाँ किसके साथ आई हो? हमना को इसकी उदासी पसंद नहीं आई, इस वजह से बात बदल कर पूछा। वो मैं अपने बाबा के साथ आई हूँ और मेरा नाम अनाया है। और आपका नाम क्या है आंटी? वो मासूम आवाज़ में बोली, जबकि इसका चेहरा भाग कर आने की वजह से सुर्ख हो चुका था। हमना ने बेसाख्ता झुककर इसके चेहरे को चूमा। वाह अनाया, आपका नाम तो बहुत प्यारा है। मेरा नाम हमना है। आपका नाम भी बहुत अच्छा है, वो मासूमियत से बोली। हमना अभी मज़ीद इसे कुछ कहती कि पीछे से किसी को अनाया को आवाज़ देते सुना तो इसने रुख फेर कर आने वाले को देखा। अनाया मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ, अगर सर को पता चल गया कि आप ऐसे भाग रही हैं तो वो आपके साथ मुझे भी डांटेंगे। अनाया की केयर टेकर बोली तो अनाया बुरा सा मुंह बनाती हमना की गाल पर बोसा लेकर उठी और धीमी आवाज़ में इससे बोली, आंटी मैं कल आपसे मिलूंगी। वो बोलकर अपनी केयर टेकर का हाथ थाम कर चली गई। अनाया के जाने के थोड़ी देर बाद नर्स ने इसे अंदर जाने का कहा तो वो खामोशी से उठकर चली गई। अस्सलाम वालेकुम मिस हमना। वो सर के खम से सलाम का जवाब देकर बैठ गई। अगर आप सलाम का जवाब ऊंची आवाज़ में देती तो ज़्यादा अच्छा होता, डॉक्टर हमज़ा इब्राहिम पुरसुकून लहजे में कहा। तो हमना जो इनकी तरफ देखे बगैर कुर्सी पर बैठ गई थी, अपनी नज़रें उठाकर इन्हें देखा और धीमी आवाज़ में इन्हें जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। मैं चाहता हूँ आप मुझे अपना एक अच्छा दोस्त समझकर अपनी बातें मुझसे शेयर करें, ऐसी बातें जो आप दूसरों को नहीं बता सकती। आप बेफिक्र होकर मुझे कुछ भी बता सकती हैं। आपके और मेरे दरमियान होने वाली बातें इस कमरे से बाहर किसी को पता नहीं चलेंगी।
डॉक्टर हमजा ने शाइस्ता लहजे में कहा तो हमना अपनी उंगलियों से खेलती हुई बोलने लगी, मुझे भी अपने माजी में की गई गलतियों के बारे में सोचती हूँ तो मेरा दम घुटता है। मुझे नींद नहीं आती, सारी सारी रात मैं बस यही सोचती रहती कि अगर मैं सही वक्त पर संभल जाती तो आज मैं पुरसकून ज़िंदगी जी रही होती। अब मैं अपनी ज़िंदगी से बेजार हो चुकी हूँ, मुझे भूख नहीं लगती, कुछ खाने को दिल नहीं करता, मैं किसी से बात भी नहीं करती, मुझे खुद से अजीब बजारियत होती और वहशत सी होती है। क्या आप नमाज़ पढ़ती हैं, अल्लाह का जिक्र करती हैं? नहीं, वो शर्मिंदगी से बोली। आपको पता है अल्लाह को याद करने से दिल को सुकून मिलता है, आपकी सब परेशानियां दूर हो जाती हैं। आप बाकायदगी से नमाज़ पढ़ना शुरू करें, कुरान पाक पढ़ें, अल्लाह का जिक्र कसरत से करें और फारिग मत रहा करें। कोई नया मुश्किल तलाश करें, जिसको जैसे कुकिंग हो गई, सिलाई वगैरह, कुछ भी जो भी आपको पसंद हो वो करें। अपने घर वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें जो और कम से कम अपने माजी को याद करें, क्योंकि गुज़रा वक्त वापस नहीं आ सकता। मगर जो वक्त अब आपके पास मौजूद है आप इसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं। वो शाइस्तगी से बोला तो हमना इनके लहजे और बातों से मुतासर हुए बगैर ना रह सकी। मैंने खुद अपने बच्चे को मार दिया और अल्लाह ने जब मुझे ये नेमत हमेशा के लिए छीन ली है तो मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है। मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मैंने बहुत से लोगों के साथ बुरा किया और सबसे ज़्यादा तो खुद के साथ बुरा किया। अब इसने असल बात खुलकर बताई जो इसे जीने नहीं दे रही थी। इंसान खता का पुतला है, हर किसी से गुनाह सरजद हो जाता है, मगर आपको इल्म है कि हमारा रब कितना अजीम है, कितना रहमान और रहीम है। वो इंसान को 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। अगर आप इससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेगी तो ये जान लें वो अपने बंदे को माफ़ कर देता है। इंसान जल्दी माफ़ नहीं करता, मगर वो रब बहुत जल्दी माफ़ कर देता है। आप अपना तल्लुक रब से जोड़ लें, यकीन माने आपकी सारी बेसुकूनी दूर हो जाएगी और आपको अपनी ज़िंदगी से भी प्यार हो जाएगा। आप जानती हैं दुनिया में मौजज़े होते हैं, क्या पता अल्लाह को आपकी कौन सी अदा पसंद आ जाए और वो भी आपको दोबारा इस नेमत से नवाज कर मौजज़ा कर दे। आप अल्लाह से मांगें, वो आपको कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगा और ना ही कभी मायूस करेगा। आप अपना ईमान मजबूत करें और अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ें। फ़िलहाल आपका टाइम ख़त्म हुआ, अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मेरी बातों पर गौर करें और अमल भी ज़रूर करें। फिर मैं अगले हफ्ते आपको पूछूंगा। हमना जो अभी तक डॉक्टर की बातों के सहर में जकड़ी हुई थी, हल्का सा अपना सर हिलाया और उठकर चली गई। रिश्वा कल से सिर्फ हाशिम के बातों के बारे में ही सोच रही थी। इसका दिल किया एक कोना खुश था तो दूसरा कोने में अजीब सा डर बैठा हुआ था, जैसे अगर अरकम और हदीद साहिब ना माने तो। वो इससे आगे सोचना भी नहीं चाहती थी, वो खुद गर्ज होना चाहती थी, अपनी मोहब्बत को पा लेना चाहती थी, मगर वो कभी नहीं भूल सकती थी कि इसके मुश्किल वक़्त में अरकम और हदीद साहिब ने ही इसका कितना साथ दिया और सिर्फ इनकी खातिर वो दोबारा अपनी मोहब्बत को छोड़ सकती है। वैसे भी हाशिम से ज़्यादा बड़ा मुकाम और मर्तबा इसके दिल में हदीद साहिब और अरकम का था। इसने सोच लिया था कि जो फैसला इसके बाबा करेंगे वो खामोशी से इस पर अपना सर खम कर देगी और कभी इनके फैसले के ख़िलाफ़ नहीं जाएगी। इसने आज फिर यूनिवर्सिटी से छुट्टी की हुई थी क्योंकि 2 रातों से वो सही से सो नहीं सकी थी। इस वजह से सुबह के इसके सर में शदीद दर्द था। अपने फ़ोन पर किसी की कॉल आते देखकर इसने कॉलर आईडी चेक की और हवेली से कॉल आते देखा। इसने कॉल उठाई तो रमना बेगम से बात करने लगी। हाशिम अलिशबा से बात करके और इसका जवाब सुनकर काफ़ी मुतमईन हो गया था। अब सिर्फ एक मसला था, वो था अरकम को पहले मनाना और फिर हदीद साहिब से बात करना। इस सिलसिले से इसने किसी दिन अरकम के घर जाकर इससे मिलने का सोचा। अंदर से वो डर भी रहा था, मगर फिर भी इसने हिम्मत करके इससे बात करने का सोचा। वो जानता था कि अलिशबा इसकी ज़िंदगी को खूबसूरत बना देगी और सबसे बड़ी बात वो अलिशबा की मोहब्बत चाहता था जो वो इससे करती थी, ताकि इसकी मोहब्बत से इसके सुलगते दिल को राहत पहुंच सके।
शफ़क़ अपनी क्लास से बाहर निकली तो अरकम बाहर दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा इसी का इंतज़ार कर रहा था। शफ़क़ इसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। अरकम भी सीधा होता मुस्कुराया और इसके साथ साथ चलने लगा। शफ़क़ लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी। अरकम भी इसके साथ ही लाइब्रेरी में आ गया। शफ़क़ ने अपनी असाइनमेंट के लिए कुछ किताबें यहाँ से ढूंढकर इसका मटेरियल कॉपी करना था। वो जैसे जैसे किताबें उठा रही थी, अरकम वैसे वैसे इससे किताबें लेकर खुद पकड़ रहा था। शफ़क़ ने मुस्कुराते हुए जल्दी से बाकी मतलूबा किताबें ढूंढकर अरकम को पकड़ाईं और लाइब्रेरी के कोने में मौजूद टेबल पर अरकम के साथ बैठ गई। इसने अपना काम शुरू किया तो अरकम ने बोर होते हुए इसे देखा। फिर कुछ सोचते हुए अपने बैग से पेन और रजिस्टर निकालकर इस पर अजीबो गरीब चेहरा बनाने लगा और शफ़क़ मुंह दिखाने लगा, जिसे देखकर शफ़क़ ने मुश्किल से अपनी हंसी रोकते हुए इसे आंखें दिखाईं कि इसे इसका काम करने दे, मगर अरकम भी खासा ढीठ साबित हुआ और एक मिर्च बनाकर इस पर शफ़क़ का नाम लिखा तो शफ़क़ ने तिलमिलाते हुए वो कागज़ रजिस्टर से फाड़ कर इसकी तरफ फेंका और टेबल के नीचे से ज़ोर से अपने पाँव इसको मारा तो अरकम ने मुश्किल अपनी चीख रोककर इसे घूरा। शफ़क़ ने अपना काम छोड़कर कागज़ पर बैंगन बनाया और इस पर अरकम का नाम लिखा तो अरकम ने इसे घूरते हुए कागज़ को फाड़ दिया। अब वो दोनों सब्जियां बनाकर एक दूसरे का नाम लिख रहे थे और कागज़ फाड़ रहे थे कि लाइब्रेरियन जो कब से इन दोनों को देख रही थी आखिर तंग आकर इन्हें लाइब्रेरी से निकाल दिया। तो दोनों फ़ौरन लाइब्रेरी से बाहर निकलो। वो दोनों लाइब्रेरियन की आवाज़ सुनकर जल्दी से अपनी जगह से उठे और लाइब्रेरी से बाहर आ गए। लाइब्रेरी से बाहर आकर दोनों हंसने लगे।